everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss important MCQs of Biology, Class 11th, Chapter Breathing and Exchange of Gases. Let us start from question number 1. Which part of the human respiratory system is the site for the actual exchange of gases? Human respiratory system के किस part में actual exchange of gases होता है? So option number C, alveoli is the correct option here. What is alveoli? Alveoli are tiny sac-like structures. Where it is present? Alveoli are present in lungs. What happens in alveoli? Actual exchange of gases takes place in alveoli. Which gases exchange in alveoli? Oxygen and carbon dioxide. By what process oxygen and carbon dioxide gases exchange in alveoli takes place? So it takes place by diffusion due to the thin alveolar and capillary walls. तो एल्वुलाई छोटी छोटी सी टिनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं लंग्स में जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है. कौन सी गैसेस का? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. किस प्रोसेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वुलाई में? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ड्यू टू द थिन एल्वुलर एंड कैपिलरी वॉल्स. क्योंकि एल्वुलाई की जो वॉल्स हैं वो बहुत ही थिन होती हैं, कैपिलरी वॉल्स होती हैं, इसीलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वुलाई में हो पाता है डिफ्यूजन के थ्रू. ओके. नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल इंक्रीज द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन? सो कौन सा फैक्टर है जो इंक्रीज कर देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन को? ठीक है, ऑक्सीजन को अलग करना है हीमोग्लोबिन से, तो कौन सा फैक्टर उसमें हेल्प करेगा? लो टेम्परेचर, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई pH, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2. देखिए, अगर CO2 की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ब्रेक होना पड़ेगा, है ना? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2. अकॉर्डिंग टू द बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट के अकॉर्डिंग हाई लेवल ऑफ CO2 एंड लो pH. अगर CO2 का लेवल हाई होगा तो एसिडिक हो जाएगा, pH लो हो जाएगा. ठीक है. विच प्रमोट द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन. जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा, pH भी डिक्रीज होगा, तब क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी. ठीक है. एनहेंसिंग ऑक्सीजन डिसोसिएशन. क्वेश्चन नंबर 3, what is the primary method by which carbon dioxide is transported in the blood? So primary method कौन सा है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, एज bicarbonate ions. About 70% of CO2 is transported in the form of bicarbonate ions in the plasma. 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होती है bicarbonate ions की फॉर्म में in the plasma, formed through the enzymatic action of carbonic anhydrase. कैसे फॉर्म होती है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस के एंजाइमेटिक एक्शन से. क्वेश्चन नंबर 4, which of the following muscles are involved in the normal inspiration? So option B is correct here. Diaphragm and external intercostal muscles are involved in normal respiration. Diaphragm contracts and move downward, while external intercostal muscles elevate the ribs. Diaphragm contract होती है और downward move करती है, while जो external intercostal muscles हैं वो elevate करती हैं ribs को, increasing the thoracic volume. फिर thoracic volume उससे increase हो जाता है और फिर inspiration होती है, leading to inspiration. Next question number 5, which part of the brain regulates the process of respiration? So option B is correct here. Medulla oblongata regulates the process of respiration. Medulla oblongata contains the respiratory center that regulate the rate and depth of breathing. Respiratory center present in medulla oblongata, okay, which regulate rate and depth of breathing. Question number 6, which of the following is not a characteristic of the respiratory surface for efficient gas exchange? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो रेस्पिरेटरी सरफेस में नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज थिन सरफेस. यस, थिन सरफेस प्रमोट्स डिफ्यूजन. ऑप्शन बी इज मॉइस्ट सरफेस. यस, मॉइस्ट सरफेस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ऑप्शन सी इज लार्ज सरफेस एरिया. यस, more the surface area, more will be the diffusion. Option D is impermeable to gases. अगर सरफेस ही गैसेस के लिए impermeable हो जाएगा तो गैसेस का एक्सचेंज होगा कैसे? So option D is correct option here.
An efficient respiratory surface should be thin, moist and have a large surface area for easy diffusion. Efficient respiratory surface को कैसा होना चाहिए? Thin होना चाहिए, moist होना चाहिए और surface area large होना चाहिए for easy diffusion. It must be permeable to gases. Gases के लिए permeable होना चाहिए, not impermeable. Impermeable होगा तो gases exchange नहीं हो पाएगा. Now come to next question number 7. The majority of oxygen transported in the blood is, majority of oxygen transport in blood takes place by bound to hemoglobin. So option B is correct here. About 97% of oxygen is transported in the blood bound to hemoglobin, forming oxyhemoglobin. 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में बाउंड टू हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से बाउंड होकर, क्या फॉर्म करके? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करके. Question number 8. The volume of air inspired or expired during a normal respiration is called. So option A is correct option here. Tidal volume is the volume of air inspired or expired during a normal respiration. Tidal volume is the amount of air inhaled or exhaled. Tidal volume क्या है? Amount of air जो inhale हुई या exhaled हुई है during normal breathing. Normal breathing में typically about 500 ml in a healthy adult. So in case of a healthy adult, tidal volume is around 500 ml. Question number 9. Which enzyme is responsible for the conversion of carbon dioxide and water to carbonic acid in red blood cells? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोनिक एसिड में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है रेड ब्लड सेल्स में? दैट एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटलाइज द रैपिड कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड वाटर टू कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाटर को और CO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोनिक एसिड में. ठीक है, कहाँ पर? रेड ब्लड सेल्स में. एडिंग इन CO2 ट्रांसपोर्ट, फिर वो हेल्प करता है CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में. क्वेश्चन नंबर 10. विच फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इज द लीस्ट इन ह्यूमन ब्लड? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. ओनली अबाउट 7% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा. प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर 7% CO2 ही ट्रांसपोर्ट होती है. मेजॉरिटी ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस. मेजॉरिटी ऑफ CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शिफ्ट्स द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट? कौन सी कंडीशन होगी जिससे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट में शिफ्ट होगा? इंक्रीज्ड CO2 concentration is the correct option here. A rightward shift Bohr effect indicates reduced oxygen affinity of hemoglobin, promoting oxygen release. देखिए, राइटवर्ड शिफ्ट मीन्स कि ऑक्सीजन एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो रिड्यूस हो गई है. उससे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए प्रमोट करना पड़ेगा ऑक्सीजन रिलीज को. ओके, दिस हैपन्स विद इंक्रीज्ड CO2. और वो कैसे होगा? जब इंक्रीज होगा CO2 का लेवल, टेम्परेचर हाई होगा और pH लो होगा. Question number 12. The total lung capacity is the sum of, option C is correct here, vital capacity plus residual volume. देखिए, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम. इट रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड. टोटल लंग कैपेसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड. क्वेश्चन नंबर 13. The partial pressure of oxygen in alveolar air is approximately, देखिए, एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होता है. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर. द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलर एयर इज अबाउट 104 mmHg, विच फैसिलिटेट्स द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू पल्मोनरी ब्लड. एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, 104 mmHg होता है. इससे क्या होगा? ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज हो जाएगी पल्मोनरी ब्लड में. Question number 4. In which form does oxygen diffuse from alveoli into blood? Option A is correct here, as free oxygen molecule. किस फॉर्म में ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है एल्वियोलाई से ब्लड में? फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में.
Oxygen diffuses across the alveolar membrane as free oxygen molecules and later binds to hemoglobin in the blood. देखिए ऑक्सीजन को डिफ्यूज अगर होना होता है एल्व्यूलर मेम्ब्रेन से तो वो फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में डिफ्यूज होती है, ठीक है। इसके बाद वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस? सो ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। हीमोग्लोबिन इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस। हीमोग्लोबिन प्राइमरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ह्यूमंस में, रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना ब्लड में। क्वेश्चन नंबर 16, विच गैस हैज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन? कौन सी गैस है जिसमें हीमोग्लोबिन के लिए हाईएस्ट एफिनिटी होगी? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन से 200 to 250 टाइम्स ग्रेटर एफिनिटी देन ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में जितनी एफिनिटी होगी ना बाइंड होने की, उससे 200 to 250 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन को CO2 मिलेगी या CO मिलेगी, दोनों मिलेंगी, तो वो किसके साथ बाइंड होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। एंड फॉर्मिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूसिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों प्रेजेंट हैं तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड होगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा। फिर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स इज फैसिलिटेटेड बाय। एयर का मूवमेंट लंग्स में कैसे होता है? बाय इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम। लंग्स में एयर तभी जाएगी जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो जब इंस्पिरेशन करते हैं डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स लिफ्ट करती हैं रिब केज को। फिर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है एंड क्रिएटिंग नेगेटिव प्रेशर टू ड्रॉ एयर इन। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है लंग्स में, फिर एयर आउटसाइड एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर आ पाती है। क्वेश्चन नंबर 18, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वुलाई टेक्स प्लेस बाय। एल्वुलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Gas exchange across alveolar and capillary membranes occurring by simple diffusion due to differences in the partial pressure of oxygen and CO2. देखिए गैसियस एक्सचेंज एल्वुलाई में एंड कैपिलरी मेम्ब्रेन्स में किसके थ्रू होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। बिकॉज पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के। और सिंपल डिफ्यूजन कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर अलग अलग होंगे, ऑक्सीजन और CO2 के पार्शियल प्रेशर जब डिफरेंस होंगे तभी सिंपल डिफ्यूजन पॉसिबल हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्राइमरीली कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इनवॉलंटरी प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग करता है? दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है, वो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग को। सो द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंटेन्स द रेस्पिरेटरी सेंटर्स दैट कंट्रोल द इनवॉलंटरी प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। Question number 20, which lung volume cannot be measured using a spirometer? Option C is correct here, residual volume. Residual volume, the air remaining in the lungs after maximal exhalation, cannot be measured by spirometry because it cannot be exhaled. देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम वो एयर है जो लंग्स में रह जाती है मैक्सिमम एक्सहेलेशन के बाद। ओके, सो रेसिडुअल वॉल्यूम को एक्सहेल तो नहीं किया जाता, इसीलिए उसको स्पायरोमीटर से मेजर भी नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ वैल्यू व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? सो व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, RQ वैल्यू इज 1. The respiratory quotient RQ is the ratio of CO2 produced to O2 consumed. कितनी CO2 प्रोड्यूस हो रही है, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, इसका रेशियो जो होता है वो होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट। फॉर कार्बोहाइड्रेट RQ वैल्यू विल बी 1 बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 आर एक्सचेंज्ड।
Question number 22. Which is the primary center controlling respiration in the brain? Option B is correct here. Medullary respiratory center. The medullary respiratory center in the brain stem regulates the basic rhythm of breathing. बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग को कौन सा रेस्पिरेटरी सेंटर रेगुलेट करेगा? मेड्यूलरी रेस्पिरेटरी सेंटर. क्वेश्चन नंबर 23. इन विच कंडीशन इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्टेड टू द लेफ्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. डिक्रीज्ड CO2 concentration. A left shift of the oxygen dissociation curve indicates increased affinity of hemoglobin for oxygen. अगर लेफ्ट शिफ्ट होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए इंक्रीज हो गई है, ठीक है. और अगर राइट शिफ्ट होगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए डिक्रीज हो चुकी होती है, ठीक है. अकरिंग व्हेन डिक्रीज CO2, लोअर टेम्परेचर एंड हाई pH and higher pH. And what are the conditions required for increasing the affinity of hemoglobin for oxygen? Decreased CO2, lower temperature and higher pH. Question number 24. Which of the following is the partial pressure of oxygen in the venous blood? Venous blood में partial pressure of oxygen reduce हो जाता है, 40 mmHg होता है, क्योंकि venous blood में CO2 की कंसंट्रेशन हाई होती है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है, ठीक है. तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 40 mmHg. Venous blood returning to the lungs has a partial pressure of oxygen around 40 mmHg, indicating lower oxygen content after tissue exchange. वीनस ब्लड वो ब्लड होता है जो बॉडी से लंग्स को रिटर्न होना होता है, ठीक है. तो उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रिड्यूस हो चुका होता है, 40 mmHg रह जाता है. इससे क्या होता है? लोअर ऑक्सीजन कंटेंट का पता लगता है कि वीनस ब्लड में ऑक्सीजन कंटेंट कम है आफ्टर टिश्यू एक्सचेंज. इट मीन्स कि ऑक्सीजन को टिश्यू एक्सचेंज कर चुके हैं ब्लड में से. Question number 25. The volume of air remaining in the lungs after a normal expiration is called. Option B is correct here. Functional residual capacity. So functional residual capacity is the volume of air remaining in the lungs after a normal expiration. देखिए, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रिमेनिंग रह जाता है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. It composed of residual volume and expiratory reserve volume. और functional residual capacity में क्या क्या होगा? It composed of residual volume and expiratory reserve volume. Number 26. Which of the following statements about oxygen transport is incorrect? So oxygen transport के बारे में कौन सा statement incorrect है? That you have to select here. Option number A is oxygen is transported mostly by hemoglobin. Yes, oxygen mostly oxyhemoglobin के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन B is about 3% of oxygen is dissolved in plasma. 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है प्लाज्मा में. Yes, करेक्ट स्टेटमेंट. Each hemoglobin molecule can carry 2 molecules of oxygen. This is incorrect statement here because each hemoglobin molecule can carry 4 molecules of oxygen, not 2 molecules. Okay. So option C is correct option here. Option D is oxygen binds to the iron present in hemoglobin. Yes, correct statement option D. Correct answer of this question is option number C. Each hemoglobin molecule can carry 4 oxygen molecules binding to the 4 iron atoms in the heme group. एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है उसमें 4 आयरन एटम्स प्रेजेंट है हेम ग्रुप में और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उनसे बाइंड हो सकते हैं. 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयरन एटम्स प्रेजेंट होते हैं हीम ग्रुप में. सो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड विथ 4 आयरन एटम्स. ओके. Question number 27. Which condition leads to the formation of carboxyhemoglobin in the blood? So carboxyhemoglobin blood में कब फॉर्म होगा? जब हीमोग्लोबिन का एक्सपोजर कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा तब कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म होगा. So option B is correct here. Exposure to carbon monoxide. Then
carbon monoxide binds to hemoglobin with a much higher affinity than oxygen. देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से हाइयर एफिनिटी के साथ बॉन्ड होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करती है विच रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। Question number 28. During forceful expiration, which muscles are primarily involved? So, internal intercostal and abdominal muscles are primarily involved during forceful expiration. Option B is correct here. So, forceful expiration involves contraction of internal intercostal muscles and abdominal muscles. देखिए इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो रिब्स को पुल करती हैं डाउनवर्ड, और जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो डायफ्राम को पुश करती हैं अपवर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बोहर इफेक्ट इज ट्रू हियर? सो यू हैव टू सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोहर इफेक्ट. Option A is low CO2 levels enhance oxygen unloading. No, this is incorrect statement. High CO2 level enhance oxygen unloading. Okay. Option B is high CO2 level decrease oxygen affinity of hemoglobin. So option B is the correct option here. High CO2 level decrease कर देगा oxygen affinity को hemoglobin के साथ. Option C is high pH favors oxygen unloading. No. Low pH favors oxygen unloading. Option D is it is related to CO2 transport only. No. The Bohr effect explains that high CO2 level and low pH reduce hemoglobin affinity for oxygen, promoting oxygen release to tissue. बोहर इफेक्ट एक्सप्लेन करता है कि अगर CO2 का लेवल हाई होगा तो उससे क्या हो जाएगा, pH रिड्यूस हो जाएगा, pH लो हो जाएगा। तो फिर जब pH लो हो जाएगा, CO2 का लेवल हाई हो जाएगा, तब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, फिर ऑक्सीजन रिलीज होके टिश्यूज के लिए अवेलेबल होगी। Let us see chloride shift in RBCs associated with movement of chloride ions into RBCs when bicarbonate ions move out. So option B is correct here. To maintain electrochemical balance, when bicarbonate ions diffuse out of RBC, chloride ions move into the RBC. This is called the chloride shift. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है क्लोराइड शिफ्ट की। इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट आयंस तो डिफ्यूज होते हैं आउटसाइड ऑफ आरबीसी एंड क्लोराइड आयंस मूव होते हैं इनसाइड द आरबीसी। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 31. विच गैस इज मोस्ट सॉल्यूबल इन ब्लड? सो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट सॉल्यूबल इन ब्लड. Carbon dioxide is about 20 times more soluble in blood than oxygen, facilitating its efficient transport and diffusion. कार्बन डाइऑक्साइड 20 टाइम्स मोर सॉल्युबल होती है ब्लड में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. इट फैसिलिटेट्स इट्स एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन. क्वेश्चन नंबर 32. द मेन फैक्टर रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड. सो CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड में मेन फैक्टर है which regulates respiration. Respiratory center is most sensitive to CO2 level. Respiratory center जो ब्रेन में प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो CO2 के लेवल के लिए मोस्ट सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है CO2 का लेवल तो उससे ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। Question number 33. Which respiratory disorder is characterized by the destruction of alveolar wall? So, emphysema is characterized by the destruction of alveolar walls. Option B is correct. Emphysema is a chronic condition where alveolar walls are destroyed. Emphysema chronic condition है जहाँ alveoli की walls destroy हो जाती हैं। इससे क्या होगा? Reducing the surface area for gaseous exchange. सरफेस एरिया गैस एक्सचेंज के लिए रिड्यूस हो जाएगा एंड फिर ब्रीथलेसनेस फील होगी। देखिए, एम्फाइसीमा क्रोनिक कंडीशन है वेयर एल्वुलर वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज
एल्वियोलर वॉल्स के डैमेज होने से सरफेस एरिया गैस एक्सचेंज के लिए रिड्यूस हो जाता है एंड कॉजिंग ब्रीथलेसनेस। क्वेश्चन नंबर 34, हाइपरकैपनिया रेफर्स टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, एक्सेस CO2 in blood. Hypercapnia is an increase in the concentration of CO2 in the blood, often leading to respiratory acidosis. Question number 35. What is the normal partial pressure of carbon dioxide in arterial blood? So, normal partial pressure of carbon dioxide in arterial blood is 40 mmHg. Option B is correct here. The partial pressure of CO2 in arterial blood is about 40 mmHg, ensuring efficient diffusion from tissues to blood. देखिए, आर्टीरियल ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है, इंश्योरिंग एफिशिएंट डिफ्यूजन फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड। व्हाट हैपेंस टू द डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन? जब इंस्पिरेशन करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है और डाउनवर्ड मूव होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड्स। During inspiration, diaphragm contracts and moves downwards, increasing the thoracic cavity volume and allowing air to enter the lungs. देखिए, जब इंस्पिरेशन करते हैं तब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है, डाउनवर्ड मूव होती है। क्यों होता है ऐसा? ताकि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो पाए, और जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करती है लंग्स में। Question number 37. Which respiratory volume remains in the lungs after a forceful expiration? So, forceful expiration करने के बाद कौन सा respiratory volume lungs में ही रहता है? Option B is correct here, residual volume. Residual volume is the amount of air remaining in the lungs even after a forceful expiration, preventing lung collapse. देखिए, forceful expiration के बाद भी कुछ वॉल्यूम एयर का लंग्स में रह जाता है, और वो क्यों रिमेनिंग रहता है लंग्स में? प्रिवेंटिंग लंग कोलैप्स, ताकि लंग कोलैप्स ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38. विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस इज द कंडीशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई. So, bronchi is the inflammation of the bronchial tubes causing cough, mucus production and breathing difficulty. Question number 39. Which part of the brain is responsible for the regulation of breathing rate? So, medulla oblongata is the part of brain regulates breathing rate. The medulla oblongata contains the respiratory centers that control the rhythm and rate of breathing. Question number 40. Which of the following factors increases the binding of oxygen of hemoglobin? कौन सा फैक्टर इंक्रीज करता है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, लो टेम्परेचर. देखिए, जब CO2 की कंसंट्रेशन लो होगी तब pH हाई होगा, लो टेम्परेचर होगा, एल्कलाइन कंडीशन होगी, इससे फिर क्या होगा? हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए इंक्रीज हो जाएगी और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करने के लिए प्रमोट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्राइमरीली कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग? ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इनवॉलंटरी प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. क्वेश्चन नंबर 42. ड्यूरिंग विच फेज ऑफ रेस्पिरेशन इज द डायफ्राम रिलैक्स्ड? डायफ्राम रिलैक्स्ड कब होती है? जब एक्सपिरेशन होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. सो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड्स. जब एक्सपिरेशन होगा तब डायफ्राम रिलैक्स होकर अपवर्ड मूव करती है, इससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और लंग्स से फिर एयर आउटसाइड पुश होती है. क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नजल कैविटी? गैस एक्सचेंज एल्वियोलाई का फंक्शन है, नजल कैविटी का फंक्शन नहीं है. द नजल कैविटी फिल्टर्स, वार्म्स and humidifies the inhaled air, but gas exchange occurs in the alveoli, not in the nasal cavity. देखिए, question number 44. During expiration, the intrapulmonary pressure is, option C is correct here, more than atmospheric pressure. देखिए, intrapulmonary pressure means pressure inside the lungs. तो जब हमें एक्सपिरेशन करना है, एयर को आउटसाइड पुश करना है, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, है ना, तभी तो एयर आउटसाइड जाएगी. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है.
So during expiration, intrapulmonary pressure is more than the atmospheric pressure. Question number 45. Which factor does not favor dissociation of oxygen from oxyhemoglobin? होगी। देखिए ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कब होगा? जब CO2 की कंसंट्रेशन हाई होगी। तो ऑप्शन डी में गिवन है लो CO2 कंसंट्रेशन, ये फैक्टर फेवर नहीं करेगा। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ऑप्शन ए देख लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई, यस इट फेवर्स ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन। Option B is low partial pressure of oxygen in tissues. Yes, this also favors oxygen dissociation from oxyhemoglobin. Option C is high body temperature. Yes, जब CO2 की concentration high होती है, body का temperature high हो जाता है. Option D is correct option here. So low CO2 concentration does not favor oxygen release. Low CO2 concentration oxygen release को favor नहीं करेगा. Instead, high CO2, high temperature and low pH enhance oxygen dissociation from oxyhemoglobin. So जब CO2 की concentration high होगी, temperature high हो जाएगा, pH low हो जाएगा, तब ऑक्सीजन डिसोशिएट होगी हीमोग्लोबिन से। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनाया था ना, उससे डिसोशिएट करना है ऑक्सीजन को। कब डिसोशिएट होगी? जब CO2 ज्यादा मिलेगी उसको, टेम्परेचर हाई मिलेगा, पीएच कम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ इज मोस्ट ऑक्सीजन कैरीड इन द ब्लड? सो ज्यादातर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैरी करता है बाउंड टू हीमोग्लोबिन। देखिए 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है बाय बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग ऑक्सीहीमोग्लोबिन, while only a small portion is dissolved in plasma. और बहुत ही कम पोर्शन प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है ऑक्सीजन का ब्लड में। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज द मेजर फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड? देखिए ऑक्सीजन तो 97% ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, बट कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? बाय कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Around 70% of CO2 is transported in the form of bicarbonate ions in the plasma. Question number 49, the maximum amount of air that can be inspired after a normal tidal expiration is known as inspiratory capacity. देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो इंस्पायर करते हैं नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन के साथ, देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखिए जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जिसको हम इंस्पायर कर सकते हैं नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन के बाद, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। So inspiratory capacity is the total amount of air that can be inspired after a normal expiration. Normal expiration के बाद जो total amount of air inspire की जा सकती है, that is called inspiratory capacity. इसमें देखिए tidal volume आता है और inspiratory reserve volume. Come to the last question of this chapter. What is the normal breathing rate in a healthy adult at rest? जब healthy adult rest position पर है तब उसका normal breathing rate क्या होगा? 12 to 16 breaths per minute. Respiratory rate in a healthy adult is about 12 to 16 breaths per minute at rest. Normal respiratory rate healthy adult का कितना होता है? 12 to 16 breaths per minute at rest. So this is all about this chapter. So now 50 MCQs of breathing and exchange of gases completes here. In the next video, we will discuss next chapter. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.